myself Seetal Singh from News Moment. Welcome you to News Moment English. News number 1 from Banpur. According to Sujit Sen Gupta, the hanging body of a minor with a rope around her neck was rescued from her uncle's house. The incident took place on the night of Saraswati Puja on Saturday. The deceased was identified as Anushka Bandopadhyay, 13-year-old of Katwar. An autopsy of the minor's body was conducted to Asansol District Hospital on Sunday morning. According to police sources, Anushka Bandopadhyay's father is working in a central agency in Delhi. Anushka also studied in the 9th class in a school there. Few days ago, she came to visit his uncle's house in Banpur, Asansol. On Saturday night, she eats with others at his uncle's house. Then the people of the house saw her hanging around the house with a rope around her neck. She was rushed to Asansol District Hospital where doctor declared her dead. However, after a preliminary investigation, the police estimated that for some reason the minor was suffering from mental depression. That's why she committed suicide. With a rope around her neck, police have filed an unusual death case in the incident. Stay with us for more news after the break. TVS PSJ TVS Play Smart Play Big. For more information, contact 8695607709 or 180012339999. News number 2. Interview of TMC candidate in Kulti. Trilochan Majhi, TMC candidate of Ward number 106, is confident of winning the election on the basis of development works. Interview has been carried out by DK Lal. Here it is. স্যার যদি আপনি সিলেক্ট হয়ে যান জিতে যান প্রথম প্রাথমিকতা কী থাকে হ্যাঁ মানে ফার্স্ট প্রাথমিকতা কী থাকে প্রথম দেখুন যেসব কিছু এখানে নতুন নতুন যেখানে বাড়ি হয়েছে রোড ড্রেন কিছু কাজ বাকি আছে মেন হলো সমস্ত পৌর পরিষেবা প্রাথমিক বা শেষ বলে কোনো নেই আমাদের এখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে 5 বছর ধরে কাজ করে দিতে মানুষের এবং সরকারি যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে সরকারি যে প্রকল্পগুলো আছে মমতা ব্যানার্জি যেসব প্রকল্পগুলো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জনগণকে জন্য দিয়েছেন সেইগুলো যাতে মানুষ পেয়ে যায় সেই চেষ্টাই চলছে। এই ব্লকে তো জলের ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গেছে 80% মতন, বাকি যে 20%গুলো আছে ওইটা সলভ কী করে যেগুলো আছে সেগুলো দেখুন ওই কাজগুলো আমি দিদি না যেগুলো হবে সরকারি প্রকল্পের কাজ ওইগুলো কন্টিনিউয়াস প্রসেসে আছে ওটা হবে ওটা তো হবে ওটা বাদ দিয়ে অন্য কাজে কথা বলুন। বিড়লাবাসীকে আপনি কি বলতে চান? বিড়লাবাসীকে বলতে চাই যে আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আপনাদের কাছে আমি সমস্ত সরকারি প্রকল্প পৌঁছে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। Stay with us for more news after the break. इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहाँ रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। News number 3. Interview of students of Rahmatnagar Higher Secondary School. Students are very much conscious of their education and employment. They clearly says this in the interview. It has been carried out by Twinkle Banwal and Seetal Singh. मैं शीतल सिंह न्यूज मोमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम रहमतनगर हाई स्कूल में पहुंचे हैं जहां हम कुछ क्लास 12 के छात्रों के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे अपनी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ छात्रों से। आप अपनी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं?
सरकार हम लोगों का ऐसा हो जो माहौल को बेहतर बना सके। ऐसा बेहतरी के लिए हम लोगों को एक अच्छा इंसान की ज़रूरत है, जो एक अच्छा इंसान ही माहौल को अच्छा बना सकता है। हमारा लीडर ऐसा हो जो सरकार चलाने में पढ़ा लिखा हो और वतन परस्ती हो, हर चीज़ का ख्याल रखे। ऐसा ही कुछ लीडर जो पढ़ा लिखा हो, हम लोगों का एजुकेशन के लिए काम करे, लाइब्रेरी के काम करे, जो पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करे, हौसला अफजाई के लिए हर तरह का इंतज़ाम करे। यही सब जो ज़रूरत है कि हम लोगों को नौकरी का पढ़ लिख करके हर एक लोगों का ख्वाब होता है, वैसे हम लोग भी अपने ख्वाब रखते हैं। और सरकार से ये अपील है कि हर जो पढ़ाई कर रहे कोशिश करे उसके साथ दे और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर ज़रूरत को मुहैया करें। रिपीट। ठीक है। चलिए मिलते हैं कुछ और छात्राओं से। नाम? मसरत परवीन, क्लास 12। आप अपने सरकार से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? मैं अपनी सरकार से उम्मीद रखना चाहती हूँ कि वो आगे चलकर हमारी बहुत सारी मदद करे। जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी बन चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बुक नहीं आया है लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे सारे बुक्स अवेलेबल हुआ हमारे जब हम 12th पार करें, ताकि हमें कंपटीशन की तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और को गेम वगैरह का भी सारा इंतज़ाम करे ताकि बच्चा एजुकेशन के साथ सारा फैसिलिटी ले सके। और स्कॉलरशिप्स वगैरह, कंपटीशन का ट्यूशन्स वगैरह कुछ अच्छा हो, और टीचर्स अच्छे टीचर्स आएँ। और गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास जो आवाम की मजबूरी को समझ सके और आवाम के लिए काम कर सके। नाम रेशमा खातून, क्लास 12। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सरकार जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका हौसला अफजाई करें, खास करके लड़कियों को जो अभी नहीं पढ़ रही हैं उनके लिए भी कुछ करें, वो आगे बढ़ें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। स्कॉलरशिप वगैरह हमें अच्छी दें ताकि हमारी कॉलेज में अच्छी एडमिशन हो पाए। कॉलेज में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दें। जो कॉलेज दूर हैं उनके लिए भी कुछ काम करें कि वो सारे बच्चे दूर जो पढ़ते हैं वो आए अच्छे से। और भी बहुत कुछ लाइब्रेरी वगैरह, हमारी कंपटीशन की तैयारी वगैरह की अच्छी चीज़ें करें। My name is नाज़िया एंड आई रीड इन क्लास 12। मेरा यही रहेगा सवाल कि हम लोग के पूरे आसनसोल में यूपीएससी का एक भी फ्री सेंटर नहीं है। हम लोग का जैसे जो भी होता है ना, प्राइवेट सेंटर वगैरह दिल्ली में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर हम लोग के आसनसोल में एक भी नहीं। पर यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट को ख्याल आता है कि करें, प्रिपरेशन करें, पर बहुत सारी इसकी ज़रूरत की वजह से वो नहीं कर पाते हैं उनका प्रिपरेशन। बट मेरा यही रहेगा कि स्पोर्ट्स वगैरह जितना भी है सबकी सहूलत हो वगैरह रहे। यहाँ पे लड़कियों के लिए एक भी जैसे ज़्यादा अच्छा लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी वगैरह खोला जाए और डेवलपमेंट को और बढ़ाया जाए। यही रहेगा, जो भी सरकार आए अच्छे से काम करे दिल से। और यही मेरा नाज़िया, मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने सरकार से यही चाहूँगी कि वो हमारे एजुकेशन पर ध्यान दें और जब हम लोग के जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो हम लोग को अच्छी एम्प्लॉयमेंट दें, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसा कि मेरे और फ्रेंड्स ने कहा है कि यहाँ पर लाइब्रेरी पढ़ने के बावजूद भी बुक्स नहीं है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है अपनी नॉर्मल पढ़ाई के लिए भी। तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइब्रेरी में बुक्स को अवेलेबल कराए और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खोले हमारे लिए, जिसमें हमको हेल्प मिल सके अपने आगे पढ़ाई के लिए, और हम लोग अच्छे से एक अच्छे सिटीज़न के तौर पर अपने आप को डेवलप कर पाए। सानी है और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। और एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं पहले चाहती हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन की अच्छी सहूलतें मुहैया हों। और इसके अलावा जैसे सभी तालिब इल्म ने कहा है कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर सही नहीं है गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। और लाइब्रेरी वगैरह का ज़्यादा तरक्की भी ज़रूरी है यहाँ पे, तो ये सब होना चाहिए। स्टार्ट। आप अपने गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखती हैं? मैं चाहती हूँ कि हम लोग को पढ़ने लिखने में मदद करे सरकार, और स्कॉलरशिप में भी थोड़ा मदद करे। बहुत सारी ऐसी बच्ची है जिसके पास पैसा होने की वजह से पढ़ाई लिखा नहीं हो पाता। बहुत सारी बच्ची की घर में रहती है, उसके लिए कॉलेज फीस उसके लिए बहुत मतलब उसको परेशानी होता है, वो सब देने के लिए थोड़ा स्कॉलरशिप मदद करे। और ये लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल कराए, हम लोग पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा वहाँ जाके पढ़े लिखे। मेरा नाम अलीशा है, फ्रॉम क्लास 12। और मुझे इस बात की मतलब करना है कि एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ का है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। और एजुकेशन पाने के बाद बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है,
एम्प्लॉय नहीं मिलता, इधर से उधर इंजीनियरिंग कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। जॉब तो प्रॉपर रखना चाहिए। गवर्नमेंट आती है, मतलब इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगा और चला गया, क्या है मतलब पता तो होना चाहिए ना कि हाँ क्या हो रहा है। अगर आप जहाँ पे मतलब आपने जीता है, कुछ भी किया, गवर्नमेंट को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस जगह से आप उठे हैं, जिस आवाम ने आपको सपोर्ट किया है, उसके लिए आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से ध्यान देना चाहिए। आए मतलब इलेक्शन के टाइम पे बस यहीं तक महदूद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉली परवीन है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी सरकार है वो हर चीज़ के लिए मुहैया करे। जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोविड के टाइम हर डॉक्टर ने मतलब पढ़ाई के हिसाब से मतलब काम कर रहे हैं, और या इंजीनियरिंग का भी काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर जॉब के लिए मुझे तो जॉब ही करना है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जॉब ही करूँगी। मेरा नाम मेहरबानो है, क्लास 12 में पढ़ते हैं, और हम लोग को एजुकेशनल चाहिए। एजुकेशन के नाम पे और क्या क्या मीन्स क्या डिमांड रखेंगे अपनी गवर्नमेंट से आप? एजुकेशन में क्या मीन्स लाइब्रेरी? हाँ, हम लोग को लाइब्रेरी के लिए हम लोग को लाइब्रेरी खुला हुआ है, लेकिन हम लोग को अवेलेबल नहीं है, हम लोग को वो चाहिए। और फिर हम आपका नाम? मेरा नाम सिद्रा खानम है, क्लास 12। मैं चाहती हूँ सबसे पहले कि सेफ्टी होना चाहिए। अभी सेफ्टी की सब ज़रूरत है, जो कि हर एक चीज़ हो रहा है, और अभी आजकल सेफ्टी चाहिए। पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, और लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर कुछ अच्छा गाइड करना चाहिए, जो कि गाइड अच्छा नहीं हो रहा, और न्यू जनरेशन बहुत ही ख़राब हो रहा है। आज आने वाला कल जो है बहुत ही ख़राब हो रहा है, न्यू जनरेशन एकदम ख़राब हो रहा है। उसको सही किया जाता है, न्यू जनरेशन सही होगी, उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है। पढ़ाई हो, सरकार हो, उस चीज़ का सेफ्टी होना चाहिए, और अच्छे से जॉब और अच्छे से ईमानदारी वाली पढ़ाई होनी चाहिए। आजकल सिर्फ डिग्री है, डिग्री के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसलिए डिग्री चाहिए हम लोग को, डिग्री चाहिए हम लोग को, और डिग्री सिर्फ मिल रहा है, नॉलेज कुछ नहीं है। नॉलेज होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, ताकि सरकार ऐसा बने, ईमानदार बने, और बहुत ही अच्छा बने, काबिलियत बने, ताकि न्यू जनरेशन को एक नया हौसला मिले, जो कि बहुत ही खराब। मैं क्लास 12 में हूँ। मैं चाहता हूँ सरकार से कि सरकार ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, बच्चों को गाइड करे। ठीक यूपीएससी जो कि बोली थी क्लास में, यूपीएससी में जो प्रिपेयर करता है, ठीक यहाँ तो है नहीं कोचिंग। यहाँ रहमतनगर में एक लाइब्रेरी ओपन है, और मगर हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, मगर उसमें किताब अवेलेबल नहीं है। और बच्चों को गाइड करे, काउंसलर, एक एजुकेशन हो जो आगे चल के कुछ अच्छा काम करे। क्लास 12। जैसे मेरे सारे दोस्तों ने कहा है कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी और कुछ बुक अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे पढ़ाई का स्टडी का भी बहुत हालात ख़राब है। हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारे स्टडी के ऊपर ध्यान दे, और एक ईमानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मुल्क के लिए हम ट्रस्ट होना चाहिए, और बहुत से काम में हमारे साथ दें। यहाँ पे तो बॉयज़ के लिए बहुत से स्पोर्ट्स है, पर गर्ल्स के लिए एक भी स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ नहीं कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट हैं चाइना में जा रहे हैं, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ की सरकार ऐसी होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में ध्यान देने के बाद फिर जॉबलेस हो जाकर उनको जॉब दे, और फीमेल स्पोर्ट्स सेंटर खोले, पॉल्यूशन News number 4 from Nigha. According to Rabi Paswan, BJP has organized a meeting in Nigha in support of its candidate. They are confident of forming the board. Several dignitaries like Pramod Pathak, former mayor Jitendra Kumar Tiwari addressing the gather. जिस घर में लोग रहते हैं वो जमीन उनका अपना नहीं है, और ईसीएल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना कठिन हो जाता था। इसके कारण इच्छा रहते हुए भी जो डेवलपमेंट हम यहाँ करना चाहते थे वो डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर पाए। उस समय राज्य सरकार का जो म्युनिसिपल अफेयर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जो माननीय मंत्री थे उनको बार बार मैंने कहा था कि चलिए केंद्रीय सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है वहां हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। और जो लोग 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल से ईसीएल के जमीन पर भी रह रहे हैं, उनको परमिसिव ऑक्यूपेंट यानी अनुमोदित दखलकार का दर्जा दिया जाए, जिससे कि सरकारी सुविधाएं से वो वंचित ना हो सके। कोयला मंत्रालय में हम लोगों ने बात किया था कि जहां जहां आपको कोलियरियां हैं, ईसीएल प्रबंधन ने कोलियरियां तो चालू की,
लेकिन कोलियरी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ग्रोसरी शॉप की व्यवस्था, उनके लिए मछली की दुकान की व्यवस्था, उनके लिए आटा चावल की दुकान की व्यवस्था, उनके लिए मिठाई की दुकान की व्यवस्था, ये कैसे हो? ये तो ईसीएल को करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ईसीएल ने ये काम नहीं किया, इसलिए पैरेलल इकोनॉमी अपने आप तैयार हो गया। अपने आप लोगों की जरूरतें थी, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए हर कोलियरी के बगल में एक मार्केट हो, इलाका अपने आप बसता गया। और ये आज नहीं बसा, ये 40 साल 50 साल से बसता हुआ आ रहा है। उसी समय यदि इसे रोक दिया जाता तो कोई नहीं बसता, लेकिन इतने वर्षों बाद अब इन लोगों के लिए कहीं जाना भी संभव नहीं है, तो ये जा भी नहीं पाएंगे और जमीन का मालिकाना भी इन्हें नहीं मिला, तो डेवलपमेंट फिर कैसे होगा? इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अब कोई बाधा नहीं है। आसनसोल नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने के बाद जो लोग भी ईसीएल के जमीन पर यहां रहते हैं, उस जमीन का परमिसिव ऑक्युपेंट का कागज कोल मंत्रालय के द्वारा आपको दिलाया जाए, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और ये काम नहीं कर सकती। News number 5. Asansol. Tensions in Asansol once again over dispute between auto and minibus is done. It is reported that after a scuffle between auto drivers and minibus personnel last night, the enraged minibus personnel stopped operations this morning. This dispute may increase the difficulties of Trinamool just before the election. Union leader Raju Ahluwalia reached the spot after receiving the information. He explained the aggrieved transport workers. It is said that it has become a daily occurrence till auto drivers are getting into fights. News number 6. Babul Supriyo, former MP of Asansol and Trinamool leader during Goa election campaign in Goa, was attacked. Babul reported on Twitter that during the election campaign on Sunday, some thugs attacked him with sharp weapons. Babul alleged that attackers were associated with a political party which had the blessings of both the BJP and the Congress. Stay with us for more news after the break. Angel Vidya Mandir, a sheer road to success. We provide classes from 8 to 10, 11 to 12, graduation. We also provide all types of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For more information, contact 9932 864067 or 8116183079. News number 7. 7 days before Asansol Pur Nigam election, CPI disintegration in Ward number 29. On Sunday afternoon, a number of activists and supporters left the CPI and joined the Trinamool Congress at an election rally in Thori Mahalla, a railway station in Asansol. Minister of State for Law and Works Malai Ghatak welcomed them with a party flag. Kavita Yadav was the Trinamool Congress candidate in this ward. Stay with us for more news after the break. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert by D.K. Lal sir. Address Rishi Arbind Nagar, Billa Road, Kulti, Paschim Bardwan. For more information, contact 98328 24975. News number 8. Sanktoria. Inauguration of 38th Festival of Sri Sri Ma Chinmastika Kali at Mahasamsan on the banks of Damodar River at Disargarh on Sunday evening. Former CMD Prem Sagar of ECL, Misra's wife Poonam Misra did on this occasion. Shiv Tatva Nandji Maharaj, former MLA of Kulti, Maniklal Acharya, Secretary of the Temple, Poet Nand Dulal Acharya, President of the Temple, Social Worker Samir Acharya, Sadasiv Trivedi and others were present. Utpal Banerjee performed the inaugural song. On this occasion, devotees enjoyed the fair all day long. While traveling at night, the balls of keep sinking in the color of other cultural events, including songs. At the same time, thousands of devotees enjoy Narayan Rayana service every day. बहुत अच्छा संचालन किया है और माँ के स्थान पे आके मैं बोल नहीं पाती हूँ। यह स्थान होता है महसूस कर रही हूँ और मैं वही महसूस कर रही हूँ। बहुत दिन से इच्छा थी कि यहाँ पे आऊँ, पर माँ ने दादा के द्वारा ही मुझे यहाँ बुलवाया है और मैं आभारी हूँ दादा आपका। मंच पे आसीन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे सामने जो भी भाई और हमारे बहन हैं उनको भी सादर प्रणाम।
बहुत अच्छा स्थान है। माँ के द्वार पे जब पहुँची हूँ तो अलग ही एक अनुभूति है, अलग ही शांति है। ऐसा लग रहा है सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद बोलूँगी कि आप सबों ने मुझे भी अवसर दिया माँ का दर्शन करने का, यहाँ आने का। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और रीमा बेटा की बात को दोहराऊंगी कि मंदिर में आए, दर्शन करें, मेला का भी आनंद उठाएं और मास्क का जरूर प्रयोग करें और फिजिकल डिस्टेंस रखें। इस प्रोग्राम में आके एक चीज़ तो मैं महसूस कर रही हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे से आयोजन किया है, इतने लोगों के बीच में, कि सभी मास्क प्रॉपर लगाए हुए हैं और सब चीज़, सबका एक डिस्टेंस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि माँ का दर्शन मैं कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। News number 9, Asansol. BJP for Asansol Municipal Corporation election. Senior leader Arjun Singh reached the Asansol for election campaign. He visited various wards including Asansol Bazar. On the occasion, he was accompanied by BJP candidates Shiv Prasad Burman, Asa Sharma, Bringu Thakur, Krishnendu Mukherjee and other local BJP leaders and activists. He feared that fair election would not be held in Asansol and TMC would try to commit hooliganism. News number 10, Sayani Ghosh, Vidhan Upadhyay, V. Shiv Darshan, Sadhu Hariram Singh were present on the occasion of an election workers meeting held at the town hall of Trinamool Congress in Jamudia block regarding the election of Asansol Municipal Corporation. लेकिन युवाओं के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि जिस बूथ से हम लोगों को लीड नहीं मिलेगा, वहाँ के युवा का जो प्रेसिडेंट है उसको हम पकड़ेंगे। क्योंकि मुझको ये नहीं सुनना है कि इसने काम किया, इसने नहीं किया है, दीदी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। दादा, आपके साथ मेरी क्लियर बात हो चुकी है कि जिस बूथ से हमको रिजल्ट ठीक नहीं लगेगा, जिससे हमको लीड नहीं मिलेगा, वहां पे जो लीडरशिप है उसको हम चेंज करेंगे। क्योंकि देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप हरिराम सिंह पे डाल नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते कि एमएलए जिताएंगे, आप नहीं बोल सकते कि दाशु भाई जिताएंगे, आप नहीं बोल सकते विधानदा देखे नेबे, आप नहीं बोल सकते कौशिक बुझबे। प्रत्येकটা বুথে যে প্রেসিডেন্ট আছে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যে প্রেসিডেন্ট আছে, ইউথের যে লিডার আছে, দায়িত্ব কিন্তু সবার। কাজে রেজাল্ট ভালো হলে সবুজ আবির খেলা হবে, আর রেজাল্ট যদি ভালো না হয় তাহলে তারপর কাউকে পাওয়া যাবে না, তখন সিনিয়র নেতৃত্বের উপর আমরা সব ছেড়ে দেব, এটা কিন্তু হবে না। দায়িত্ব আমাকে চলে সব খাওয়া যায়, আমাকে চলে। আমি একটু পরে ফোন করছি, একটু পরে। अरे भाई, ए भाई, अरे यार, SMS of the moment. Life goes on, so don't waste your time worrying about your mistakes. Learn and grow. Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.